Today's scripture passage is Romans chapter 5, verses 1 to 11. Romans chapter 5, verses 1 to 11. रोमियो 5, 1 से 11 तक. Therefore, since we have been justified by faith, we have peace with God through our Lord Jesus Christ. Through him, we have also obtained access by faith into this grace in which we stand, and we rejoice in hope of the glory of God. More than that, we rejoice in our sufferings, knowing that suffering produces endurance, and endurance produces character, and character produces hope. And hope does not put us to shame, because God's love has been poured into our hearts through the Holy Spirit who has been given to us. For while we were still weak, at the right time, Christ died for the ungodly. For one will scarcely die for a righteous person, though perhaps for a good person one would dare even to die. But God shows his love for us, in that while we were still sinners, Christ died for us. Since, therefore, we have now been justified by his blood, much more shall we be saved by him from the wrath of God. For if, while we were enemies, we were reconciled to God by the death of his Son, much more, now that we are reconciled, shall we be saved by his life. More than that, we also rejoice in God through our Lord Jesus Christ, through whom we have now received reconciliation. This is the word of God. Can you all hear me? Good morning. I'm Ashish Sam. I'm one of the elder shepherds of the church, assigned to preach this morning from the book of Romans. मेरा नाम आशीष किसान है। मैं यहाँ पर एक प्राचीन के रूप में इस कलीसिया से जुड़ा हुआ हूँ और आज मुझे ये अनुमति मिली है और ये अवसर मिला है कि मैं आपके सामने परमेश्वर के वचन को पाठ पाऊँ। If you're joining us new this morning, I would like to mention that we follow an expository pattern of preaching, that is to preach through a book on a Sunday during a Sunday service. और यहाँ पर जो हमारे साथ पहली बार जुड़े हैं, मैं आप सबको बोलना चाहता हूँ कि हम लोग इस कलीसिया में परमेश्वर के वचन को इस प्रकार वचन को आयत बाय आयत पढ़ते हैं और आयत बाय आयत उसको सीखने की कोशिश करते हैं और हमारा प्रचार जो है उसी आधार पर बना हुआ है और उसी आधार पर हम लोग प्रचार भी करते हैं। And those of us who have been part of this journey till now, I know you know that we are in Romans chapter 5, and our focus passage this morning is verses 6 to verse 11. और आज सुबह हमारे साथ जो पहले से जुड़े हुए हैं उनको पता है कि हम लोग रोमियो किताब से परमेश्वर के वचन को और उसके संदेश को हम सुन रहे हैं। आज हम रोमियो उसकी 5वें अध्याय 6 से 11वीं आयतों के बीच में परमेश्वर हमसे क्या बातचीत करना चाहता है उसको सुनने की कोशिश करेंगे। I entitled my sermon this morning as God, but God shows his love for us. और आज सुबह का शीर्षक मैं कुछ इस प्रकार देना चाहता हूँ कि परमेश्वर हमसे अपने प्रेम को प्रकट करता है। So the time for the sermon starts now. और अब से मेरा सरमन का जो समय है वो शुरू होता है। The most dangerous moment in any relationship is when someone sees you at your worst. और किसी भी संबंध में अगर आप पूछे से सबसे बुरा या सबसे खतरनाक समय तब होता है जब दूसरा व्यक्ति आपको अपने उस समय पर देखता है जो सब आपके सबसे दुष्ट समय हो। And at that moment is the test of love. और उस समय जब आप सबसे मुश्किल के समय में हो, आप सबसे बुरे वक्त में हो, वो होता है प्रेम का एक समय जब आपको प्रेम को परखा जाता है। This morning we will see how God loves us at the worst moment of human history. और आज सुबह हम इसी बात को देखेंगे कि किस प्रकार परमेश्वर मनुष्य जब अपने सबसे बुरे वक्त पे होता है या बुरे वक्त पर है उससे नीचे नहीं गिर सकता है। उस वक्त परमेश्वर हमसे प्रेम करता है। At that moment Christ chose to die on the cross. और जैसे वचन कहता है कि उस समय पर प्रभु यीशु मसीह ने ये चुना कि वो हमारे लिए मारा जाए। But before he gets to verse 6, in verse 5, Paul
says something stunning. He says, the hope we have in God will never disappoint us. और इसी बात को छठी आयत में आने से पहले पौलुस जो है 5वीं आयत में कहता है कि जो आशा जिसमें प्रभु यीशु मसीह में जो हमने पाई है वो हमको कभी भी लज्जित होने नहीं देगा। Why? Because He has poured out His love into our hearts. क्यों? क्योंकि परमेश्वर ने अपने प्रेम को हमारे दिलों में डाल दिया है। Therefore, hope will not disappoint. और इसलिए प्रेम जो है, आशा जो है, हमें कभी लज्जित नहीं करेगा। And in the next few verses, He's going to say, how can we be so sure of that? इसके बाद की आयतों में पौलुस कहेगा कि हम इसकी बात की पुष्टि कैसे करेंगे, इस पर हम अपने जीवन भरोसा कैसे कर सकते हैं। For Paul, between verses 6 and 11 of chapter 5, is going to tell us that it is not a vague, emotional, sensational feeling that he's going to talk about, but that cross of Christ, where the demonstration of love of God has happened, is nothing but a historical fact, an event to believe. 6 से 11वीं आयत में पौलुस जो है इस बात को हमारे सामने रखना चाहता है कि ये जो परमेश्वर के प्रेम के बारे में जो मैं तुम्हें बताने वाला हूं वो एक महज भावना नहीं है, वो किसी के मन में उठी हुई काल्पनिक सोच नहीं है, परंतु सच्चाई में वो ऐतिहासिक है, वो घटा है। और उसी बात की पुष्टि करते हुए पौलुस हमको 6 से 11वीं अध्याय पे इस प्रेम पर भरोसा करने के लिए हमें आगे ले जाता है, हमें निर्वाचित करता है। So under the title, But God shows His love for us, there are 3 things that I would like to bring to your notice this morning from this particular passage. इन आयतों में से 3 बिंदुओं को मैं आपके सामने लाना चाहता हूँ। First is the extraordinary love between verses 6, 7 and 8. 6 से लेके 8वीं आयत में हम लोग वो असाधारण प्रेम के बारे में पढ़ते हैं। Then we are going to talk about the extravagant love between verses 9 and 10. और उसके बाद हम एक ऐसे प्रेम की बात बारे में देखना चाहते हैं जो 8 से 10 में है, जिसकी कोई सीमा नहीं है। And thirdly, we're going to talk about evocative love, which is verses 11, or love which evokes worship. और उसके बाद की आयतों में 10 से 11वीं आयत के बीच में हम ऐसे प्रेम के बारे में देखेंगे जो हमारे जीवन से एक प्रतिक्रिया चाहता है। There are 3 things. 3 चीजों को हम देखेंगे। First is the extraordinary love. पहला एक असाधारण प्रेम। Secondly, we're going to talk about the extravagant love. और उसके बाद हम एक ऐसे प्रेम को देखना चाहेंगे जिसकी कोई सीमा नहीं है। And thirdly, we're going to talk about the evocative love. और उसके बाद हम एक ऐसे प्रेम को देखना चाहेंगे, देखने की कोशिश करेंगे जो हमसे प्रतिक्रिया चाहता है। Chapter 5 verses 6 to 8. 5वें अध्याय उसकी 6वीं और 8वीं आयत को भी। The first point for the morning. आज सुबह का पहला बिंदु Under the title, But God Shows Us Love, is extraordinary love. प्रिय चीजों, पहला बिंदु हम क्या देखेंगे? हम पहला बिंदु देखेंगे कि परमेश्वर हमसे असाधारण रूप से प्रेम करता है। For a modern mind, love is a warm, fuzzy, tender emotion. एक आधुनिक मन जो हमारा है उसके लिए प्रेम जो है प्रिय अजीजों एक महज भावना है। But what goes missing is the canvas on which love should be painted. मगर इस आधुनिक मन में एक चीज जो हमें समझ नहीं आती है कि ये जो प्रेम कहाँ पर दिखता है, हमको कहाँ पर बनते हुए दिखता The है। canvas or the sheet on which you paint love is called sacrifice or a death to self. प्रेम की भावनाओं की बात तो होती है, प्रेम की बात तो होती है, मगर ये प्रेम दिखता कहाँ है ये आधुनिक मन नहीं समझ पाता है। और ये प्रेम कहाँ दिखता है प्रिय अजीजों? प्रेम दिखता है बलिदान में। And that is what Paul brings to us this morning, और आज सुबह verses 6 to 8. 6 से लेकर 8वीं आयत में पौलुस हमारे सामने इस सच्चाई को रखता है। While talking about the love of God, जब वो परमेश्वर के प्रेम के बारे में बात करता Paul है, can't keep coming back to the cross of Christ. पौलुस अपने आप को रोक नहीं पा रहा है, वो बार-बार प्रभु यीशु मसीह के क्रूस के पास पहुंच जाता So है। I'm going to request each one of you, open your hard copy Bibles this morning to chapter 5 of book of Romans and read along aloud with me as I read between verses 6 to verse 8. Are you with me? Are you with me? Okay, here I go. Verse 6. For while we were still helpless, at the right time, Christ died for the ungodly. For one will hardly die for a righteous person, though perhaps for a good someone would dare to die. But God demonstrates His love towards us in that while we were still sinners, Christ died for us. While we were still sinners. That's
extraordinary. Christ dying for us. प्रिय चीजों, असाधारण बात क्या है? असाधारण बात यह है कि जब हम पापी ही थे तब प्रभु हमारे लिए मरा। For Paul, love and death or sacrifice are inseparable realities. और पौलुस की ये प्रेम और बलिदान या प्रेम और मृत्यु वो एक ही शब्द के दो पहलू हैं। Look at verse 6. He starts off with the word for. और आप देखिए 6वीं आयत में वो शुरुआत करता है क्योंकि। That is to say that he's expounding on verse 5. कहने का तात्पर्य यह है कि 5वीं आयत को वो यहाँ पर थोड़ा वर्णित कर रहा है। What is he expounding वो on? क्या वर्णित कर रहा है? That hope in Christ will not disappoint. Why? Because God's love has been poured out in our hearts through the Spirit who was given to us. वो ये कह रहा है कि आशा लज्जित क्यों नहीं करेगा हमको, क्योंकि परमेश्वर ने अपने प्रेम को हमारे दिलों में भर दिया है। And verse 6 to 11 is an explanation of that one verse. और उस 6 से लेकर 11वीं आयत को या आयत में पौलुस इसी बात को वर्णित कर So रहा our है। redemption is not merely salvation, it's not just escape, it's not just justification. और इसलिए हमारा उद्धार सिर्फ हमारा उद्धार ही नहीं कि हम बच गए हैं, हमें पाप से निकाल दिया गया है। But it means that we have been made the objects, not the wrath of God, but the love of God. और यहाँ मगर हमारा जो उद्धार में प्रिय यीशु, हम लोग जो क्रोध के पात्र थे वहां से हटाकर अब हमको परमेश्वर के प्रेम का पात्र बना दिया That है। is why talking about the love of God, Paul mentions death 3 times and love once. और जब प्रेम पौलुस परमेश्वर के प्रेम को वर्णित करते हुए 3 बार कौन से शब्द का इस्तेमाल करता है? मृत्यु शब्द का इस्तेमाल करता है और सिर्फ 1 बार प्रेम शब्द का इस्तेमाल करता When है। God says, I love you, और जब परमेश्वर कहता है कि मैं तुमसे प्रेम करता हूं, it's not the teddy bear Valentine Day love, it's an action, it's a word, it's God demonstrated. तो प्रिय चीजों, वो आज के आधुनिक समय का टेडी बेयर भावनात्मक प्रेम नहीं जिसके पीछे कोई मतलब नहीं, वैसा प्रेम नहीं। परमेश्वर जब कहता है कि मैं तुमसे प्रेम करता हूं, वहां पर आप उसको क्रियाशील होते हुए देखते हैं, एक क्रिया को आप वहां पर देखते Look हैं। at verse 7, look in your Bible. 7वीं आयत को मेरे साथ अपने बाइबलों में He देखिए। says, chances are that the family members will die for each other. और वो कहता है कि हो सकता है कि जो परिवारजन जो है एक दूसरे के लिए मर जाए, Friends may be ready to take bullet for one another. दोस्त एक दूसरे के लिए मर जाए, हो But सकता what है। makes this love of God extraordinary? मगर ये परमेश्वर के प्रेम को कौन सी चीज असाधारण करती है? That while we were weak, ungodly, sinners, He died for us. क्या असाधारण करता है? कि जब हम पापी थे, हम असहाय थे, जब हम लोग ही नहीं थे, परमेश्वर प्रभु हमारे लिए मरा। Oh dear church, this morning as we gather here, और इसलिए प्रिय चीजों, आज सुबह जब हम उसके उपस्थिति में बैठे this हैं, table makes it loud and clear to our hearts this morning. ये मेज जो हमारे सामने ये जोर से चीख कर हमको बताता है Christ died for weak, ungodly sinners like us. कि प्रभु यीशु मसीह हम जैसे कमजोर पापी जनों के लिए, जो पाप और पाप से भरे हुए थे, उनके लिए वो मरा। What else does Paul say? पौलुस यहाँ पर और कैसे इसको वर्णित करता है? Christ died for us at the right. वो यहाँ पर क्या कहता है? प्रभु यीशु मसीह हमारे लिए क्या समय पर? ठीक समय पर मरा। Why does Paul add the dimension of time यहाँ to पर acts of love? समय को क्यों वो यहाँ पर लाता है जब परमेश्वर के प्रेम को वर्णन करता है? Because to act in love is to act in the right time. क्योंकि अगर आप कहते हैं कि आप किसी से प्रेम करते हैं और अगर प्रेम से आप कुछ करना चाहते हैं तो वो वक्त अनुसार होना चाहिए। Paul attaches the death of Christ to a precise moment. और यहाँ पर पौलुस जो है प्रभु यीशु मसीह की मृत्यु को एक समय में जोड़ता है। At the right वो time. कहता है कि ऐसे ही नहीं मर गया, वो कब मरा? सही समय पर मरा। Sheeta's main complaint against me is that you do not have right time to help me with household chores. और शीरा जो है बार बार इसी बात को मुझे बोलती है कि सब तो ठीक है, मगर तुम्हारे पास सही वक्त नहीं होता है जब तुम मेरी सहायता कर सकते And हो। I am like, why don't you outsource your help? तो मैं कहता हूँ किसी और से सहायता क्यों नहीं ले लेते? Look at God. मगर यहाँ पर परमेश्वर को देखिए, Timing in love and us. प्रिय चीजों,
प्रेम में वक्त अनुसार चीजों को करना बहुत जरूरी You है। have your pencils with अगर you? आपके पास अगर पेंसिल हो, I prefer a pencil to be underlined. Used to underline the hard copy of your Bible. It says at the right time. I want you to underline that. मैं चाहता हूं कि आप इस बात को रेखांकित करें। क्या At the right time, Christ died for us. क्या रेखांकित करें? तो ठीक समय पर मसीह भक्तिहीनों के लिए मरा। What is Paul trying to say? पौलुस यहाँ पर क्या कहना चाह He's रहा है? insisting cross is not a mythology. वो कह रहा है कि क्रूस जो है कोई मनगढ़ंत कहानी It's नहीं not a है, religious imagination. वो कोई धार्मिक सोच कल्पना नहीं For the है। death of Christ happened at a point in time in history. वो कह रहा है कि इतिहास में प्रभु यीशु का मसीह का मृत्यु हुआ है और ऐतिहासिक है। It happened outside Jerusalem on a hill called Calvary. वो ये नहीं कहता कहीं हो गया, वो कहता उस समय निकालकर वो भौगोलिक जगह दिखाता है कि यरूशलेम के बाहर गोलगोथा पे वो Under मरा। the record of a Roman authority named Pilate. और उसको उस बात को हम लोग समाचार में पढ़ते हैं कि पुन्तियुस पायलट के अधीन में उसको मार डाला At the गया। time when God destined it to happen. और वो समय कौन सा था? जब परमेश्वर पिता ने उसको निर्णय किया कि इस समय पर मेरा पुत्र मारा जाएगा मनुष्यों के लिए। Paul is making one thing clear. पौलुस यहाँ पर एक चीज हमारे लिए स्पष्ट कर रहा This है। is extraordinary love because the timing was so right. Why? While we were weak, ungodly sinners, Christ died for us. पौलुस कहता है कि ये कोई ऐसे ही मन भावक भावना सुहावना प्रेम नहीं है, ये प्रेम असाधारण प्रेम है। और असाधारण क्यों है? क्योंकि सही वक्त पर प्रभु यीशु मसीह, हम जो पापी थे, बिन परमेश्वर के थे, हम दुर्लभ लोगों के लिए प्रभु यीशु मसीह मारा गया। For Paul, between verses chapter 1 and chapter 5, has already claimed, for all have sinned and fallen short of the glory of God. पौलुस ने पहले अध्याय से 5वें अध्याय इस बात को तय कर दिया है। कौन सी बात को तय कर दिया है? कि सब ने पाप किया है और परमेश्वर की महिमा से क्या हो गए हैं? रहित हो गए। Even if you're without the law, you're Gentile, you are without excuse. You have fallen short of the glory of और God. वो कहता है कि तुम तो अन्य जाति, तुम्हारे पास नियम तो नहीं था, मगर तुम अपने आप को इस बात से हटा नहीं सकते हो। And to the Jew, you cannot boast. You are not excluded. Even though you have the law, you have fallen short of the glory. वो कहता है कि हे अन्य जाति, तुम भी पाप महिमा से रहित हो गए हो, तुम पाप में गिर गए हो। और वो यहूदियों को देख के कहता है कि तुम्हारे पास तो नियम था, फिर भी तुम बच नहीं पाए, तुम भी पाप के अधीन में हो। That's the context between verses chapter 1 and chapter 5. वो 1 से लेके 5वें अध्याय में यही चीज को समझाने की कोशिश करता है। Paul says here at the right time, वो कहता है, पौलुस हमें कहता है ठीक समय पर, सही वक्त into पर, that darkness, उस अंधकार में, into human helplessness, उस मान में असहाय शय पर God sent His Son to die for us. परमेश्वर ने पिता ने अपने पुत्र को हमारे लिए मरने के लिए This भेज is not a दिया। fairy tale, dear church. प्रिय चीजों, ये एक मनगढ़ंत कहानी नहीं है। This is not imagination of a sage यहाँ पर sitting under a tree. किसी पर्वत पर या किसी पेड़ के नीचे बैठे हुए किसी व्यक्ति की कल्पना नहीं है। This death of Christ is an undeniable historical fact which requires our faith and belief. प्रिय चीजों, प्रभु यीशु मसीह का मृत्यु ऐतिहासिक है। प्रभु यीशु मसीह का मृत्यु हुआ है और सच्ची एक कहानी, सच्ची घटना है, और इसको हम लोग ठुकरा नहीं सकते हैं, इसको अपनी जीवन से अलग नहीं कर सकते As हैं। C.S. Lewis observes, Christianity is not merely a philosophy to admire, but an event to believe. और यहाँ पर C.S. लुईस इस बात को कहता है कि मसीहत जो है वो एक दार्शनिक शास्त्र नहीं, एक सिर्फ सोच नहीं, मगर वो एक ऐसी सच्चाई है जिस पर हमको विश्वास करना है। Why did He die? वो क्यों हमारे लिए मरा? To redeem us. कि वो हमारा उद्धार कर Redeem सके। who? कौन किसका उद्धार कर सके? Who were we? हम कौन लोग थे? Weak, ungodly, and sinners. ये चीजों, हम लोग क्या थे? हम लोग पापी जन थे, दुर्लभ लोग थे, बिन परमेश्वर के थे। Paul is describing a people who live without reverence and in opposition to God. पौलुस जो है पहले अध्याय से किस बात को समझाने की कोशिश कर रहा है कि तुम लोग परमेश्वर से घृणा करने वाले लोग थे, परमेश्वर के खिलाफ बलवा करने वाले लोग You थे। are a humanity, we are a humanity which exchange the truth of God for a lie.
और पौलुस कहता है कि तुम लोग जो लोग थे, तुमने परमेश्वर की महिमा को संसारिक चीजों से बदल दी। Oh, the problem with us is that we are not just people who do sinful activity, but we are pervasively sinful. That is to say that we are inwardly in opposition, in and against anything that God, anything who God is. प्रिय चीजों, आप ऐसा मत सोचिए कि आपसे बीच में थोड़ी इधर उधर गलतियां हो जाती हैं, एक पाप इधर हो गया, दो पाप वहां पर हो गए। इस बात को, ऐसा हमारा जीवन नहीं है। पौलुस कहता है कि तुम लोग परमेश्वर के खिलाफत के लोग थे, परमेश्वर से घृणा करने वाले लोग थे, तुम लोग ऐसे लोग थे जो सिर्फ अपने बारे में सोचते हो और परमेश्वर के नाम का कुछ भी हो तुम उसके खिलाफ खड़े होते हो। And this diagnosis of human condition is offensive to our modern और imagination. प्रिय चीजों, आज जब आप आधुनिक लोगों से बात करेंगे, आज के लोगों से बात करेंगे, जब आप ये सच्चाई, मनुष्य की सच्चाई को उनके सामने रखेंगे, कहेंगे क्या बेकार चीजें लिखी हैं, मनुष्य इतना बेकार कैसे हो सकता Education, है? technology, advancement, modernization, institutions cannot repair what has gone deeply, pervasively wrong within the heart of mankind. प्रिय चीजों, इस बात को याद रखिए, किसी प्रकार की बढ़ोतरी, आधुनिक चीजें, हमारे समय की सोच, मनुष्य के साथ जो गलत हो गया है, मनुष्य के अंदर जो चीज बिगड़ चुकी है, कोई भी चीज उसको ठीक नहीं कर सकती है। For the scripture says our problem is not informational, that is to say, it's not lack of information or education, it is moral, it is pervasive, it's internal. प्रिय चीजों, बाइबल इस बात को बहुत साफ कहता है कि हमारे मनुष्य के साथ ऐसा नहीं कि उसको पता नहीं है, ऐसा नहीं कि उसको ज्ञान नहीं है, पर बाइबल कहता है कि मनुष्य की समस्या जीवन के अधीन उसके दिल की समस्या है, जहां पर वो पापी है, वो अपने बारे में सोचता है और सिर्फ पाप करता है। For Paul is being brutally honest in this particular epistle. और प्रिय चीजों, पौलुस जो है बिल्कुल खुले में, स्पष्ट शब्दों में मनुष्य की सच्चाई को For he साफ says करता even है। our best intentions cannot cure what has gone wrong deep within us. पौलुस क्या कहने की कोशिश करता है? पौलुस कहता है आप जितना भी अच्छा सोच ले अपने बारे में, आप जितना भी अच्छा करने की कोशिश करें, आप अपने जीवन को सुधार नहीं सकते हैं। The problem is not around us, it lies deep within. समस्या हमारे चारों तरफ नहीं है प्रिय चीजों, समस्या कहां पर है? हमारे दिलों में, हमारे अंदर है। So Paul says, if Christ, death of Christ is an undeniable historical reality, then the condition of human mankind as weak, ungodly sinners is also a reality, undeniable reality. तो पौलुस यहाँ पर क्या कहता है? अगर हम इस बात को मान रहे हैं कि प्रभु यीशु मसीह की सच्चाई ऐतिहासिक है, उसको हम झुठला नहीं सकते हैं, तो उसके साथ एक और सच्चाई को मानना पड़ेगा। वो क्या है? मान्य मनुष्य की सच्चाई की हम मनुष्य जो है, हम लोग दुर्लभ लोग हैं, बिन परमेश्वर के पापी जन है, इस सच्चाई को भी हम झुठला नहीं सकते Now हैं। look at who does he die for? Why does he die? Because he dies on behalf of us, for us. यीशु वो किसके लिए मरा? ये सवाल पूछना जरूरी है। बताइए, वो किसके लिए मरा? हमारे लिए मरा। For there, the word "for" in verse 8 conveys that he died in our stead, in our spot. और 8वीं आयत में वो क्या कहता है कि वो हमारे लिए, हमारे स्थान पर वो मारा It's an गया। extraordinary love because he took death on himself, which was on ours. प्रिय चीजों, असाधारण प्रेम इसलिए है क्योंकि वो नहीं कहता कि अच्छा तुम ये कर लो तो मेरे पास आ जाओ। वो क्या करता है? वो हमको लाने के लिए वो खुद मर जाता है, वो हमको बचाने के अपने आप को बलिदान कर देता He है। died because we were helpless objects of God's wrath. क्यों वो हम इसलिए मरा क्योंकि हम लोग परमेश्वर के क्रोध के पात्र थे। He bore what belonged to us, that's the wrath of God. प्रिय चीजों, हमारे पर जो क्रोध था, उस क्रोध को प्रभु यीशु मसीह ने अपने ऊपर ले This लिया। is classic substitution. प्रिय चीजों, इसको स्थानांतरीकरण कहते हैं। This is the heart of the gospel. ये सुसमाचार के बिल्कुल केंद्र बिंदु है। Allow me to quote, Christ did not die for sinners because he detected in them an inclination towards God or a desire to end the enmity towards him. He died
to overcome enmity, hostility of the ungodly towards God. प्रिय चीजों, इस बात को आपको समझना बहुत जरूरी है। इस कथन को मैं बोलना चाहता हूं, प्रभु यीशु मसीह इसलिए हमारे लिए नहीं मरा क्योंकि उसको दिखा कि हम परमेश्वर से थोड़ा प्रेम करने वाले लोग हैं, इसलिए नहीं मरा। प्रभु यीशु मसीह इसलिए मरा क्योंकि वो चाहता था कि हमारा और परमेश्वर के बीच का जो बैर है वो खत्म किया जाए। हमारे परमेश्वर के बीच में जो महान बैर है उसको वो खत्म कर पाए। The word ungodly, ये जो परमेश्वर का जो शब्द है, it means one who lacks reverence to God. और ये इसको इस प्रकार कह सकते हैं कि एक ऐसा व्यक्ति जो परमेश्वर को भय नहीं मानता, Someone who is in opposition to God. एक ऐसा व्यक्ति जो परमेश्वर की खिलाफत में अपनी जीवन करता है। From being image bearers of God, we in our ungodliness have become image reversers of God. हम लोग परमेश्वर के छवि धारक थे, मगर पाप के कारण हमने इस छवि को बदल डाला We है। suppress the truth हमने इस सच्चाई को दबा दिया है so that we can deem God the one true living God of the Bible and place ourselves on that throne of God. और हमने सच्चाई को दबाने की कोशिश क्यों करी है? क्योंकि हम परमेश्वर जो सच्चा है उसको उसके सिंहासन से उतारकर अपने आप को परमेश्वर नियुक्त करना चाहते थे, अपने आप को सिंहासन पर बैठाना चाहते So थे। what am I saying this morning? For God has moved towards God-hater. प्रिय चीजों, आज सुबह हम लोग मैं क्या कहना चाहता हूं, यह साधारण क्यों है? परमेश्वर जो परमेश्वर से घृणा करने वाले लोग थे उनके तरफ बढ़ जाता है। God is not motivated to move towards us because he found something great in us. प्रिय चीजों, इस बात को याद रखिएगा, परमेश्वर हमारे की तरफ इसलिए नहीं बढ़ा कि उसने हमारे अंदर कोई भलाई देखी, उसने हमारे अंदर उसके प्रति कोई प्रेम देखा, इसके लिए वो हमारे तरफ नहीं बढ़ा। He moved because he is love. प्रिय चीजों, वो इसलिए हमारे तरफ बढ़ा, उसने पहल इसलिए करी क्योंकि वो प्रेम है। And that will never change. प्रिय चीजों, और वो कभी नहीं बदलेगा। His movement towards you never changes. Extraordinary love. प्रिय चीजों, उसका जो बड़ा वो जो हमारे तरफ आता है उसको कोई नहीं रोक सकता। इस असाधारण प्रेम को कोई नहीं रोक सकता। Why is it extraordinary? प्रिय चीजों, ये प्रेम असाधारण क्यों है? Because we have not earned this love. क्योंकि हमने इस प्रेम को हासिल नहीं किया There है। is nothing that has attracted this love. ऐसा कोई हमारे जीवन में कोई लियाकत नहीं थी जिसको इस प्रेम को आकर्षित कर पाए। There is nothing in us that compelled or persuaded God to love us. ऐसा हमारे अंदर कोई लियाकत नहीं थी जिसको देखकर परमेश्वर ने हमारे पीछे आ गया। Paul makes it very, very simple and says, He loved us while we were weak. He loved us while we were enemies. He loved us while we were ungodly sinners. प्रिय चीजों, पौलुस स्पष्ट कर देता है। क्या स्पष्ट करता है? कि परमेश्वर ने हमसे कब प्रेम किया? जब हम बहुत अच्छे थे। कब प्रेम किया? जब हम पापी ही थे, जब हम दुर्लभ थे, जब हम बिन परमेश्वर के थे, तब परमेश्वर ने हमसे सही समय पर प्रेम किया। If His love does not originate because we compelled Him to do so, then it is not sustained because we compel Him through our performance. प्रिय चीजों, इस बात को याद रखिए, ये सच्चाई क्यों आधारित है? सच्चाई इसलिए आधारित है कि हमारी किसी लियाकत के कारण परमेश्वर ने हमसे प्रेम नहीं किया, और इसीलिए हम इस बात का भरोसा रखते हैं कि हम अब ऐसी कोई चीज कर भी नहीं सकते हैं जिससे परमेश्वर अपना प्रेम हमारे पर जारी रखे। So why is it extraordinary love? Because God loved us at our very worst at the right time. प्रिय चीजों, ये असाधारण क्यों है? क्योंकि परमेश्वर ने जब हम सबसे बेकार अपनी अवस्था में थे, इससे बुरा हम बन नहीं सकते थे, उस वक्त परमेश्वर ने हमसे प्रेम किया और हमारे लिए प्रभु मारा If you गया। have your pencils with you, even now underline, Christ died for us. That's a fabulous statement. प्रिय चीजों, छठवीं आयत में कौन सी अध्याय? आठवीं आयत में हम लोग कौन सी बात को पढ़ रहे हैं उसको रेखांकित करिए कि वो हमारे लिए मारा गया। What does that mean? इसका क्या मतलब है? That He has not just merely justified us, that He has become for us. He has reconciled us. And that is what makes this love not just extraordinary, but extravagant. प्रिय चीजों, ये प्रेम इसलिए असाधारण है क्योंकि इस परमेश्वर ने हमको ये नहीं बोला कि ऐसा ऐसा कर लो तो तुम उद्धार पालोगे। ये असाधारण क्यों है? आठवीं आयत का आखिरी भाग में क्या लिखा है? मसीह हमारे लिए मारा गया। प्रिय चीजों, हमको बचाने के लिए वो मारा गया, और इस कारण ये प्रेम असाधारण है। Dear church,
The love of Christ is not just extraordinary, the love of God is extravagant. Verses 9 to 10. Love by nature, write that down. Love by nature is extravagant. प्रिय चीजों, इस परमेश्वर का प्रेम सिर्फ असाधारण नहीं है, परमेश्वर का प्रेम का कोई सीमा नहीं है। प्रिय चीजों, इस बात को याद रखिए, प्रेम का कोई सीमा नहीं होता है। अगर आपका प्रेम सीमित है तो वो प्रेम नहीं है। Love knows to only flow and overflow. Love knows no drip and drizzle. प्रिय चीजों, प्रेम जो है सिर्फ बहना जानता है और अधिक से बहना जानता है। वो बूंद बूंद कर कर हमारे और आपके जीवन में Look at प्रवेश what नहीं करता Paul है। says. पौलुस यहाँ पर 9 से लेकर 10वीं आयत में क्या बोल रहा है? The starting phrase of chapter verse 9 was, I was considering that to be my title. Much more than. How much more than? और 9वीं आयत में वो क्या कहते हैं? इससे और बड़ी बात क्या हो सकती है? Paul employs a logic of greater to the lesser. तो यहाँ पर पौलुस जो है वो एक बड़े चीज को दिखाता है उस छोटे चीज को दिखाने He के लिए। uses that phrase, how much more than, twice between verses 9 and 10. 9 से लेकर 10वीं आयत के बीच में से इस बात को 2 बार वो इस्तेमाल करता Cross, है। he says, is costly affair. वो कहता है क्रूस जो है वो साधारण नहीं, सस्ता नहीं, वो बहुत ही कीमती है। An act of sacrifice where God sacrificed his own son on the cross. प्रिय चीजों, ये एक ऐसा समय जहां पर पिता परमेश्वर ने अपने पुत्र को हमारे लिए बलिदान चढ़ा कर दिया। So Paul says if he is willing to do that for his enemies, वो कहता है कि अगर ये परमेश्वर अपने बैरियों के लिए कर सकता है, how much more then? तो इससे अधिक कितना? He has now reconciled us to himself. प्रिय चीजों, अब उसने हमारा मेल मिलाप कर दिया है। Paul is building assurance here. प्रिय चीजों, पौलुस यहाँ पर हमारे जीवन में वो आश्वासन बनाना It is चाहता है। called the gospel assurance. प्रिय चीजों, यहाँ पर उस समाचार का आश्वासन को हम देखते The हैं। certainty that God who began this act of salvation in us, the work of salvation in us, will draw this to completion at his return. प्रिय चीजों, जिसने हमारे अंदर उद्धार का कार्य शुरू किया है, वो रुकेगा नहीं, वो थमेगा नहीं, वो हमको वापस लेने आएगा और अपने साथ विराजेगा। But before he reminds us that, मगर इसको याद दिलाने से पहले he यहाँ पर tells us one thing to remember. पौलुस यहाँ पर एक चीज कहता है कि याद करो। He has saved you from the wrath of God. वो क्या याद करने के लिए बोलता है हमको? कि उसने हमें किससे बचाया है? Look at verse 9. 9वीं आयत को देखिए। Much more than having been justified by the blood, we shall be saved from the wrath of God. तो वो क्या कहता है? हमें किसके क्रोध से बचाया गया है? परमेश्वर के क्रोध से बचाया गया है। Paul introduces a truth which our culture often resists. प्रिय चीजों, पर पौलुस यहाँ पर एक ऐसी सच्चाई को परिचित करता है जो हमारी सभ्यता उसको झुठलाने की कोशिश He करती है। mentions the wrath of God यहाँ पर वो परमेश्वर के क्रोध को बताता है and he does not apologize for it. और उसके बाद वो इस बात को माफी नहीं मांगने लगता For the है। wrath of God is not an uncontrolled divine irritation. यहाँ पर इस बात को समझिए, परमेश्वर का क्रोध ऐसा नहीं कि सुबह सुबह उठकर छोटी चीजों पे वो रिस गया हो। It is God's holy, settled opposition to evil which opposes his good creation. और यहाँ पर इसलिए परमेश्वर का ये अपना धर्मी क्रोध है जो पाप के खिलाफ वो दिखाता है और दर्शाता है। For we today in this fallen humanity live a life which is not how the life was meant to be lived. क्योंकि प्रिय चीजों, सच्चाई ये है कि हम आज ऐसी जीवनों को जीते हैं जिसका इस प्रकार हमको जीने के लिए बनाया नहीं गया था। We live in a broken world, not in the paradise which God created man and woman for. हम लोग एक क्षतिग्रस्त इस दुनिया में रहते हैं। हम लोग उस सुंदर बगीचे में जो परमेश्वर ने बनाया था वहां के निवासी नहीं है। Now scripture is clear about one thing for sure. प्रिय चीजों, बाइबल एक चीज को लेकर बहुत स्पष्ट है। There is a day coming एक दिन आने वाला है, when the patience of this God will run dry. एक समय आएगा जब प्रभु परमेश्वर जो अपने आप को रोक रखा है वो अब नहीं अपने आप A को रोक day पाएगा। of judgment will come. वो न्याय का दिन आने वाला है And it is the response of a holy God और यहाँ पर परमेश्वर के एक पवित्र परमेश्वर की प्रतिक्रिया को आप to देखते हैं judge a humanity which continues in rejection and rebellion and hatred towards God and his purposes. क्योंकि वो न्याय करेगा। न्याय किसके खिलाफ करेगा? एक ऐसे मनुष्य मानवता के खिलाफ जो परमेश्वर के विरोध में खड़ा हुआ है, उसके साथ घृणा करता है और उसके
खिलाफत में वो खड़ा हुआ है। For we are often tempted to imagine God as a tolerant, just merely disappointed, but someone who can be worked with. That's not the God of the Bible. प्रिय चीजों, हम लोग जब नए नियम को पढ़ते हैं तो हमारे अंदर एक ऐसे परमेश्वर को हम अपने मनों में उत्पन्न करने की कोशिश करते हैं जो हमें लगता है कि वो बहुत प्रेम ढीला परमेश्वर है, जो ठीक है थोड़ा यहाँ गलती हुई तो माफ कर देगा। हम एक ऐसे परमेश्वर को अपने मनों में उत्पन्न करने की कोशिश But करते the हैं, God that Paul talks about, मगर यहाँ पर पौलुस जिस परमेश्वर की बात कर रहा है, he's not an indifferent God. प्रिय चीजों, वो एक ऐसा परमेश्वर नहीं जो जिसको चीजों से फर्क नहीं पड़ता है। Only a loving, truly loving God can hate evil. प्रिय चीजों, एक सच्चा प्रेमी परमेश्वर ही दुष्टता से घृणा कर सकता It है। is his holy love confronts all that corrupts and destroys his good प्रिय चीजों, creation. क्योंकि वो पवित्र प्रेम करता है और इसलिए जो भी चीज उसकी सृष्टि को खराब करती है, करूप करती है, उसके खिलाफ वो क्या होता है? क्रोधित होता है। Now look at verse 9 and look at verse 10. 9वीं आयत को 10वीं आयत को देखिए। Between 9 and 10, there is a shift in the language Paul uses. 9 से लेकर 10वीं आयत, 9वीं आयत और 10वीं आयत के बीच में 10वीं में पौलुस अपनी भाषा शैली को बदल लेता है। He has used the word justified, which means you are the verdict is out, you are acquitted, you are free now. वो इस बात को कहता है कि तुम्हें धर्मी ठहरा दिया गया है, तुम्हें पाप से रहित कर दिया गया है, तुम निर्दोष हो। Your condemnation is removed. तुम्हारे पर जो पाप का दंड था वो हटा दिया You गया do है। not need to carry the guilt of your sin anymore. तुम्हारे पर अपराध बोझ जो पाप का है, अब तुम उसको लेकर चलने की आवश्यकता नहीं But look है। at verse 10. मगर 10वीं आयत को And this is देखिए, how you should read your Bible. और इस प्रकार आपको अपने बाइबल को पढ़ना Underline the चाहिए। word justified. अब धर्मी किया गया है उसको रेखांकित करिए। Now look for another word in verse 10. Tell me which word do you find? 9वीं आयत में आपने वो धर्मी ठहराया गया उसका रेखांकित किया। अब 10वीं आयत में देखिए कि उसी वैसे कौन सा शब्द उसका इस्तेमाल किया गया है? Reconcile. उसने मेल मिलाप किया। Now look at that word. इस बात को जरा देखिए, From courtroom language to family table language. वहां पर न्यायालय में जो शब्द का इस्तेमाल किया गया है, वहां से अब वो परिवार में शब्द इस्तेमाल करते हैं, उसको वो करता For है। reconciliation is not merely legal, it is relational. क्योंकि जब आप मेल मिलाप करते हैं तो वो न्यायालय का काम नहीं, न्यायाधीन नहीं होता, वहां पर संबंधों के अधीन पर होता है। Look at verse 10. For while we were enemies, we were reconciled to God through the death of His Son. Much more, having been reconciled, we shall be saved by His life. Verse 10. 10वीं आयत में पौलुस क्या करता है? मेरे साथ देखिए, क्योंकि बैरी होने की दशा में उसके पुत्र की मृत्यु के द्वारा हमारा मेल परमेश्वर के साथ हुआ, तो फिर मेल हो जाने पर उसके जीवन के कारण हम उद्धार क्यों ना पाएंगे? So gospel is not just about being saved, it's also being restored to God in a relationship. बार-बार मैं इस बात को याद दिलाता हूं कि हमें जो उद्धार दिया गया है वो सिर्फ हमें पापों से बचाने के लिए नहीं, हमको पापों से बचाकर परमेश्वर हमको एक नया स्तर देता है, अब हमको नवीन करता है। For one who should have received, one whose judgment was on us, now receives us in love. प्रिय चीजों, जिसने हम पर न्याय डाला था, वही न्यायाधीश हमको क्या कर रहा है? अपने पास बुला ले रहा We है। are not merely acquitted, we are welcomed, we are adopted, we are declared His children. प्रिय चीजों, हमें सिर्फ निर्दोष नहीं ठहराया गया है, हमें क्या ठहराया गया है? उसके पुत्र पुत्रियां बना दिया गया है, उसके साथ रहने वाले लोग के रूप में हमको बना दिया गया है। So what does this mean to us? इसका आज सुबह इसका मतलब क्या है? That we have received the love in our heart. प्रिय चीजों, परमेश्वर ने हमको अपने प्रेम हमारे दिल में भर दिया In the है। death of Christ, we have been brought into a relationship with God, a vibrant one that too. प्रिय चीजों, प्रभु यीशु मसीह के मृत्यु के कारण हम लोग परमेश्वर के साथ एक नवीन और सुंदर क्रियाशील संबंध में बंध गए And हैं। look at the magnanimity of the statement that if the death of Christ is a historical reality, Paul says resurrection of Christ too is a historical reality, and that event points us to the fact that we have been reconciled with Him into a relationship. यहाँ पर पौलुस बार-बार उस ऐतिहासिक सच्चाइयों को हमारे सामने ला रहा है। वो पहला क्या है? अगर हम मानते हैं कि प्रभु यीशु मसीह का मरना वो ऐतिहासिक घटना है,
तो एक और ऐतिहासिक घटना क्या है? उसका जी उठना। अगर हम उसको ऐतिहासिक मानते हैं तो एक और ऐतिहासिक घटना है, वो क्या है? कि वो अब हम उसके साथ हमारा मेल हो चुका है। Therefore, why should you read your Bible every day and pray? आपको अपना बाइबल क्यों पढ़ना चाहिए हर दिन, और प्रार्थना क्यों करना चाहिए? Because you are earning your way into His family, right? इसलिए कि आप अगर ऐसा करते ही आप अपने परमेश्वर के परिवार में वो आपको और अंदर ले आता है। Is that why you should read your Bible? आपको अपना बाइबल क्यों पढ़ना चाहिए? Is that why you should pray? क्यों प्रार्थना करना चाहिए? We pray. We read our Bibles every day because He has made us His family. प्रिय चीजों, हम अपने बाइबल को इसलिए पढ़ते हैं, हम उससे प्रार्थना में बातचीत इसलिए करते हैं क्योंकि उसने हमें अपना परिवार बना दिया है। At this point, Paul makes that theological sweep. प्रिय चीजों, इस समय पर पौलुस जो है एक आध्यात्मिक सच्चाई को हमारे सामने रखता So है, that it drills it into us. जिससे कि वो हम इस बात को समझ लें। If Christ in death has reconciled us, अगर परमेश्वर के पुत्र मरने के कारण हमारा मेल मिलाप हो गया है, then how much more will we be saved by His life? Look at the argument, how it goes. प्रिय चीजों, यहाँ पर देखिए वो तर्क कैसे लगा रहा है कि अगर उसकी मृत्यु से हमारा मेल मिलाप हो चुका है, इस सोचिए उसके जीवन से हम और क्या प्राप्त करें। He's हमारा talking उद्धार about करता होगा। resurrected Savior. प्रिय चीजों, यहाँ पर वो एक जी उठे उद्धारकर्ता की बात कर Jesus रहा who है, now lives, जो प्रभु यीशु मसीह जो जीवित है, who remains not dead in the grave. वो अब उस कब्र में नहीं है। He is ongoing, unending, interceding life of a risen Christ at the right hand of the Father. प्रिय यीशु वो जीवित उद्धार करता है जो आज हमारे लिए स्वर्ग स्थान में अपने पिता के साथ मध्यस्थ कर रहा है। So if Christ died to reconcile प्रिय us, यीशु अगर प्रभु यीशु मसीह हमारे लिए वो मरकर हमारा मेल मिलाप को and कर दिया if that है, was a costly act of अगर God, वो अपने आप में ही बहुत ही कीमती एक कार्य परमेश्वर ने किया है, then Christ is now a living representative or mediator in heaven. प्रिय यीशु आज प्रभु यीशु मसीह हमारे लिए जीवित मध्यस्थ है उस स्वर्गीय He स्थान में। appears before the Father with not list of our failures, but with His finished work, with His wounds completed and accepted on our behalf. प्रिय यीशु इस बात को सोचकर आपको आनंदित होना चाहिए कि आज जब प्रभु यीशु मसीह अपने पिता के सामने खड़ा होता है तो वो हमारी गलतियों को नहीं गिनाता है, मगर वो अपने जख्मों को दिखाता है और कहता है कि इनके उद्धार का सारा कार्य क्या हुआ है, पूर्ण कर दिया गया है। Oh, it is a love that justifies, प्रिय यीशु एक ऐसा प्रेम जो हमें धर्मी करता a है, love that reconciles, एक ऐसा प्रेम जो हमारा मेल मिलाप a करता love है, that secures. एक ऐसा प्रेम जो हमें सुरक्षित करता है। This love cannot be received in silence. dear. प्रिय यीशु ये प्रेम को आप छुप कर कहीं बैठकर इसको प्राप्त नहीं कर That is सकते। why this is an extravagant love. This is an overflow. प्रिय यीशु और इसलिए हम लोग कहते हैं कि ऐसा बेसाब बिन सीमा का एक प्रेम को हम देखते It's हैं। an overflow of love. प्रिय यीशु यहाँ पर आप प्रेम को बहते हुए देखते It's a हैं। deluge of love. ये यहाँ पर प्रेम आपके ऊपर फट कर गिरा हुआ है। And that means you and I cannot sit there as if nothing has happened. और इसलिए प्रिय यीशु जब इस महान प्रेम को हमारे जीवन में उंडेल दिया गया है, जो एक ऐसा प्रेम जिसकी कोई सीमा नहीं है, तो हम वहां पर उसके लाभार्थी होकर आराम से ऐसे प्राप्त कर बैठे लोग नहीं हो सकते हैं। Oh, the church has been trying to get people to come for prayer meetings, come for Bible studies. आइए, अभिषेक चंद्रा is posting message after message. और हम लोग तीसरे कलीसिया से हम लोग निवेदन कर रहे हैं कि अरे भाई प्रार्थना सभाओं में आओ। अभिषेक चंद्र बार में मैसेज डाले जा रहा है। Our words as elders are feeble and not so compelling. I know that. प्रिय यीशु मैं जानता हूं कि हम एल्डर और प्राचीनों के शब्द अपने आप में ही कमजोर होंगे। But does this love compel you because you feel the deluge of love in your life, dear church? प्रिय यीशु मगर क्या ये प्रेम आपको अपने जीवन में महसूस आप कर पा रहे हैं? For that's what Paul would go ahead and say in verse 11. The love evokes. It's evocative love. It's an evoking worship. प्रिय यीशु और इसी चीज को यहाँ पर पौलुस 11वें अध्याय आयत में कहता है कि ऐसा प्रेम जिसको आप शांत होकर उसको स्वीकार नहीं कर सकते, ये आपके जीवन से
प्रतिक्रिया चाहता है। Look what Paul says in verse 11. 11वें आयत में देखिए पौलुस क्या कह And रहा that है। is why I prefer you all bring your hard copy Bibles, because it's wonderful to underline with your pencils in your Bible. And Paul says in verse 11, not only this, but we also celebrate. In most of your Bibles, it would be the word boast in God through our Lord Jesus Christ, through whom we have received reconciliation. यहाँ Look at the nature of love. Love by nature evokes response. प्रिय चीजों, प्रेम, यहाँ पर इस बात को हमें समझना पड़ेगा। जब हम प्रेम के लाभार्थी होते हैं तो हमारे जीवन में कुछ ना कुछ प्रतिक्रिया उत्पन्न होती है। Now, what response is Paul looking for? यहाँ पर कौन सी प्रतिक्रिया को पौलुस देख रहा है? What is the word he uses? यहाँ पर कौन से शब्द का इस्तेमाल कर रहा है? Huh? I can only hear murmuring. हाँ? जोर से बोलो। आनंद, आनंदित। हिंदी में आनंदित, अंग्रेजी में celebrate, NASB translation celebrate. I think ESV will go for the word rejoice. Some other translations go for the word boasting. The real word there is boasting. Exalting. अलग अलग शब्दों का इस्तेमाल किया गया है। हिंदी में आनंदित है, कहीं पर प्रसन्नता को जाहिर करें, कहीं पर घमंड करने को लिखा गया है, मगर मूल शब्द में शब्द जो है घमंड करो। Look at it, underline that. Boasting in what? Not in yourself, not in your progress, not in your spiritual maturity, but boast in what? In God. That requires you to underline it in your Bibles. प्रिय चीजों, यहाँ पर अगर आप इस शब्द को देखें, कौन सा शब्द बात कर रहे हैं? 11वीं आयत में क्या लिखा है? परमेश्वर में क्या लिखा है? परमेश्वर में आनंदित होते हैं। आनंदित शब्द का मूल शब्द जो है वो क्या है? घमंड करना। तो यहाँ पर हम अपने आप पर घमंड करने के लिए नहीं बोल रहा है, या हमारे प्रकृति पे घमंड करने के लिए नहीं बोल रहा है, या हमारी आत्मिक परिपक्वता पे घमंड करने के लिए नहीं बोल रहा है। किस पे घमंड करने के लिए बोल रहा है? परमेश्वर पे घमंड करो। Paul has been using this word previously between chapter 1 and 4. एक से लेकर 5वें अध्याय के बीच में पौलुस इस शब्द का इस्तेमाल कर रहा है। He is asking Jews not to boast about the law that they have. और वो यहूदियों से कह रहा है कि तुम्हारे पास जो नियम है उस पर तुम घमंड मत करो। That's the same word Paul is using here. उसी शब्द को पौलुस यहाँ पर इस्तेमाल कर रहा है। Throughout he is using the to boast, to glory, to exult in something as a source of confidence and identity. यहाँ पर इसको कहता है घमंड इसलिए करो क्योंकि तुमको अब भरोसा हो चुका है, तुम्हारा पहचान क्योंकि अब इससे आ रहा है, इसलिए परमेश्वर पे घमंड करो। It is to put your weight of your soul on something which you think will carry you through. इस शब्द का अगर आप देखें, थोड़ा सा ध्यान देंगे तो क्या मतलब है? आपने ऐसा अब कुछ पा लिया है जिस पर आप अपने पूर्ण आत्मा के भार को उसके ऊपर रख देंगे और आपको भरोसा है कि ये आप कभी भी डूबेंगे नहीं, अनंत काल के लिए आप बस उसके ऊपर आप स्थिर रहेंगे। You know, boasting, what it looks like? ये चीजों घमंड करने का किस प्रकार हमको दिखता है? सब मालूम। आप जो प्रचार करने जा रहे हैं मुझे मालूम। हम लोग किस प्रकार कई बार बोलते भी हैं और कई बार हम लोग सोचते हैं कि अरे ठीक है, ये प्रचार विचार से मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, मैंने खुद बाइबल पढ़ रखा है, मुझे सब कुछ पता है। हम 10 बजे आ जाते हैं, आप 11 बजे आते हैं, ये आपकी आत्मिक समस्या है। The other way to boast is that we will say that we come at 10 o'clock, you people are only showing up at 11. There is a spiritual problem you have. 40 दिन का लेंट का फास्टिंग रखता हूं। I keep fasting for 40 days during the Lent period. तुम सब खाते हो। You guys eating everything in Lent for the Lent time? मैं तो सिर्फ हिंदी में बात करूंगा, I'll तुम अंग्रेजी में बोलोगे। only talk in English, not in Hindi. Paul says everyone has fallen short of the glory. Please, पौलुस इसको आधार क्या बनाता है? पौलुस क्या कहता है कि कुछ लोग ने पाप किया और कुछ लोग महिमा से रहित हो गए। क्या बोलता है? व्यापक, सबने पाप किया और सब महिमा से रहित हो गए। No one can stand before God. कोई भी परमेश्वर के सामने घमंड करके खड़ा नहीं हो सकता No one है। can stand and say, "Look, God, I have done this." और कोई भी खड़ा होकर ये नहीं कह सकता परमेश्वर की, देखो परमेश्वर, मैंने अपने बलबूते पे तुम्हारे सामने आ गया हूँ। But what do you do with your
your cheshta to boast. What do we do with that? हाँ, सच्चाई ये है कि हम मनुष्य होकर हमें घमंड तो किसी ना किसी में करना होता है। What does it Paul say? Beat your boasting out. No. तो He radicalizes it. He redefines, redirects it. पौलुस ये नहीं कहता कि घमंड मत करो, क्योंकि मनुष्य होकर हमें घमंड करना पसंद है। पौलुस क्या कहता है? अपने से हटाकर किस पे घमंड करना शुरू करो? परमेश्वर पर घमंड He करना says, शुरू करो। shift the weight of your soul, of your identity to God Himself, not to your family, not the language you speak, not the region you come from, not your career, not whatever. Nothing of that. यहाँ पर पौलुस इस बात को कहता है कि तुम अपनी पहचान जो है, जिस बात पर तुमने अपनी पहचान को बना रखा है, उसको बदलकर परमेश्वर पर डालो। अगर तुमने अपनी पहचान को अपनी भाषा पर, अपने सभ्यता पर, अपने परिवार पर, अपने कार्य पर तुमने बना रखा है, तो बदलो। उसको बदलकर अपनी पहचान को सिर्फ और सिर्फ परमेश्वर के आधार पर और उसके ऊपर रखो। Look what he says. यहाँ पर देखिए क्या कह रहा है। Boast in God, not merely in what God has done for you, not what we know about God, not even primarily in what God has done for us. He says, boast in God. प्रिय चीजों, यहाँ पर देखिए शब्दों को समझना बहुत जरूरी है। यहाँ पर पौलुस ये नहीं कह रहा है कि परमेश्वर ने ये जो किया है उस पर तुम घमंड करो, परमेश्वर ने तुमको ये जो दिया है उस पर घमंड करो। यहाँ पर पौलुस क्या शब्द इस्तेमाल कर रहा है? परमेश्वर में घमंड करो, उसमें घमंड करो। If you have to boast in God. प्रिय चीजों, अगर आपको घमंड करना भी है तो वो सिर्फ और सिर्फ परमेश्वर पे करें। This is the great conversion, transformation which Abhishek was speaking about last evening of the human soul, the shift from self to God. प्रिय चीजों, कल रात को भी हमने ये देखा कि हमारे जीवन को बदल दिया गया है, और वो जहां पर हम अपने बारे में अब छोड़कर हम परमेश्वर के में होकर उसके बारे में सोचने But लगे to हैं। understand this, we need to understand what it replaces in our life. प्रिय चीजों, इसको समझने के लिए हमें समझना होगा कि वो हमारे जीवन में क्या बदलता Are you है। with me? आप क्या मेरे साथ हैं? Are you slumbering? Are you sleepy? अगर आप में से कोई सो रहा हो तो हाथ उठाएं। Do we need to do a small exercise, stretching? यहाँ पर ऐसा कोई हो जिसको थोड़ा व्यायाम की जरूरत हो जगने के लिए? Beneath our striving lies a deep sense of insecurity. प्रिय चीजों, हम जो ये मेहनत कामकाजी जो परेशान रहते हैं, उसके पीछे क्या छुपा हुआ है? एक असुरक्षा का भाव छुपा हुआ है। Anxiety is nothing but the restlessness of a human soul which has not rested itself in God. प्रिय चीजों, ये जो एंजाइटी जो है, बेचैनी जो है, अगर इसको परिभाषित आप करें तो क्या है? बेचैनी इसलिए है क्योंकि आपने अपने आप पर भरोसा करना छोड़ा नहीं है। आपने परमेश्वर एक ऐसी आत्मा, अब ऐसे एक व्यक्ति हैं जो अपने पर ही चीजों को रखते हैं। आप परमेश्वर पर निर्भर नहीं हो पाए हैं। So there are two kinds of people. दो तरह के लोग हैं। One who is ashamed of their past, एक ऐसे लोग हैं जो अपने भूतकाल को देखकर बहुत शर्मिंदा है, and therefore they strive something extra to overcome their past. और इस शर्मिंदगी से बाहर निकलने के लिए वो बहुत ज्यादा मेहनत करने की कोशिश करते हैं, बहुत सारी चीजें Other करते kind हैं। is who boast about their hegemony or their heritage. और दूसरे किस्म के लोग कौन हैं? जो वो कहते हैं कि देखो मैं कहाँ से आया हूँ, मैं बहुत श्रेष्ठ सभ्यता, बड़े परिवार से आया हूँ। Oh, all of us want antecedents. That's what we are trying to do. और हम लोग करने की कोशिश कर रहे हैं कि मैंने ऐसा कुछ किया है, इस बात को बार-बार दर्शाने की कोशिश So कर we रहे are हैं। looking for approval. हम लोग क्या करने की कोशिश कर रहे हैं? हम लोग लोगों से मान्यता प्राप्त करने की कोशिश कर रहे हैं। That is what helps social media thrive so much. प्रिय चीजों, अगर सोशल मीडिया इतनी जोर शोर से बढ़ रहा है, वो क्यों बढ़ रहा है? It thrives because we want approval, likes. प्रिय चीजों, सोशल मीडिया इसलिए बढ़ रहा है कि जैसे ही आप अपने बारे में कुछ डालते हैं तो आपको क्या मिलने लगता है? लाइक्स। और वो लाइक्स कम हो जाए तो आपको बुरा लगता है, बड़ा अच्छा लाइक हो जाए तो आपको ऐसा लगता है कि आपने मान्यता हासिल कर ली है। I'm not there on any social media apart from WhatsApp. मैं किसी भी सोशल मीडिया में नहीं हूं, इस बात का मैं घमंड करता हूं। But when I put a status update,
व्हाट्सएप में भी अगर मैंने स्टेटस अपडेट डाला every 5 minutes I'm checking who saw it. तो मैं क्या करता हूँ, हर 5 मिनट में देखता हूँ कि किसने देखा। We place the weight of our soul on approval, relationship, success, control. प्रिय चीजों, हम लोग ने अपनी पहचान को किस चीज पे डाल दिया है? हमने लोगों की मान्यता पर, अपनी सफलता पर, लोग कैसे हमारे व्यवहार करते हैं, इन सारी चीजों पर हमने अपनी आत्मा का, अपने भार को बना दिया है, अपने जीवन को हमने इसका बना दिया है। All these things will crumble under the heavy weight of your soul. Your body is not just the heavy part of you. Your soul is heavier than your body. प्रिय चीजों, आत्मा अपने आप में बहुत भारी चीज है, और अगर आपने किसी ऐसे हल्के चीज पर उसके ऊपर अपनी आत्मा को निर्धारित कर दिया है या रख दिया है, तो वो ढह जाएगा। For Augustine says, you have made us, he's referring to God, you have made us for yourself, O Lord, and our hearts are restless until they rest in you. अगस्तीन इस बात को कहता है, बेचैनी को देखकर अगस्तीन इस बात को कहता है कि हे परमेश्वर, तूने मुझे तुम अपने लिए बनाया था, और मेरा हृदय तब तक बेचैन रहेगा जब तक मैं तुम पर अपने आप पूर्ण भरोसा नहीं करूंगा। So Paul says, stop chasing your identity in these things. और यहाँ पे पौलुस कहता है कि अपने परिवार में, अपनी भाषा पे, अपने कार्य पर, अपनी सभ्यता पर घमंड करना छोड़ दो, इस पर अपनी पहचान बनाना छोड़ दो। Paul says, instead boast in God. वो कहता है इसको हटाकर किस चीज से बदलो। वो ये नहीं कहता कि घमंड करना छोड़ दो। क्या कहता है? कह रहा है कि घमंड करना भी है तो उसे परमेश्वर से बदलो। Stop performing for God. परमेश्वर के लिए चीजें करना छोड़ दो या परफॉर्म करना छोड़ दो। Start resting in who He is. मगर परमेश्वर कौन है, उस पे अपने आप को निर्धारित करने की कोशिश करो। Stop treating your prayer life and Bible reading, your consistency as the basis of your standing before God. प्रिय चीजों, आप अपने जीवन में जो बाइबल पढ़ते हैं, प्रार्थना करते हैं, उसको इस प्रकार देखना बंद करिए कि अगर ये नहीं करूंगा तो परमेश्वर मुझे अपने पास नहीं रखेगा। But read because He died for us, and how much more then He will save us. प्रिय चीजों, मगर बाइबल इसलिए पढ़िए क्योंकि आपको परमेश्वर ने बचाया है, आपको परमेश्वर ने अपने परिवार का अंग, पुत्र पुत्रियां बनाया है, तो उस पिता को जानने की चेष्टा के लिए अपने बाइबल को पढ़ें। Dear church, कलीसिया, whether it is relationship, approval, your family history, your heritage, your losses, your gains, whatever that may be. प्रिय चीजों, मैं यहाँ पर बैठे, मुझे नहीं पता आपका चाहे जो हो, आपका परिवार हो, आपकी भाषा हो, आपकी सभ्यता हो, आप कहाँ से आते हो, आपके कौन से बड़े कार्य हो, उससे कुछ भी फर्क नहीं पड़ता है। None of these are gods of your life. They are just gift from the eternal God, the God. प्रिय चीजों, ये आपकी जीवन की सफलताएं नहीं है, ये आपकी जीवन की मूर्तियां नहीं बन सकती हैं, ये सिर्फ और सिर्फ इस महान परमेश्वर का प्रेम है जो उसने आपको ये सब दान में दिया हुआ है। In the Greek, the verse 11 ends with the word Lord Jesus Christ. और अगर आप उसको यूनानी में देखेंगे तो 11वीं आयत की आखिरी भाग में प्रभु यीशु मसीह के साथ शब्दों के साथ ये आयत खत्म किया जाता Every है। road in chapter 5 leads to the name of Jesus Christ. 5वें अध्याय के हर सड़क उसका अंत प्रभु यीशु मसीह में हो रहा है। Jesus Christ died at the right time. प्रभु यीशु मसीह सही वक्त पर मरा। He was the one who bore the wrath that we deserve. जिस क्रोध के अधीन हम थे, वो क्रोध को प्रभु यीशु मसीह ने सह It लिया। is through His blood that we are justified. उसके लहू के द्वारा हम धर्मी ठहराए गए हैं। He is the one we boast in. हम लोग इसलिए हम वो है जिस पर हम घमंड करते हैं। But we boast in Him as our God and as our Lord and Savior. प्रिय चीजों, मगर हम उस पर घमंड किस प्रकार करते हैं, उसको इस प्रकार की वो मेरा परमेश्वर है, मेरा उद्धार करता And है। that's how Paul ends this passage. और पौलुस इस भाग को इस प्रकार खत्म With करता the है। name of Jesus वो प्रभु Christ. यीशु मसीह के नाम के साथ He संबंध has given us करता a है। name to boast in. प्रिय चीजों, उसने हमें ये नाम दिया है जिस पर हम घमंड कर He's सकते not हैं। given us a set of beliefs and patterns and doctrines to boast in, dear church. प्रिय चीजों, उसने हमको आध्यात्मिक चीजें नहीं सिखाई हैं जिस पर हम घमंड कर सकते Or हैं। He's not given us denominations like Brethren
Protestant and Methodist and CNI to boast in. प्रिय चीजों, उसने हमको गुट नहीं दिए हैं, ब्रदरन, मेथोडिस्ट, पेंटिकॉस्टल, जिस पर हम लोग घमंड कर पाए। He has given us a name. उसने हमको एक नाम दिया, Lord Jesus Christ. प्रभु यीशु मसीह नाम दिया। And that's what this table reminds us. प्रिय चीजों, ये मेज वो याद दिलाता That है। every sermon, every doctrine, every promise of God must finally lead not to an idea, not to a doctrine, not to a teaching, but about the person of Jesus Christ. प्रिय चीजों, इस बात को समझिए और सीबीएफ द्वारा इस बात को मानता है कि हर संदेश, हर सच्चाई, हर आध्यात्मिक बातें, हर वायदे परमेश्वर के पास ही लेके जाता है। प्रभु यीशु मसीह के नाम पर वो रुकता है। One who died on that old rugged cross, वो ऐसे प्रभु यीशु मसीह जो उस कलवरी क्रूस पर मरा, whose lives now keep you forever, और उस जिसके who lives to keep you forever. जिसके जीवन के द्वारा आप जीवन प्राप्त करते So the हैं। question is, तो इसलिए सवाल आज सुबह ये है, it's not whether God loves you or not. सवाल ये नहीं है कि क्या परमेश्वर मुझसे प्रेम करता है कि He's नहीं। already answered. प्रिय चीजों, इन आयतों में हमने इसको स्पष्ट शब्दों में देखा है कि वो हमसे प्रेम On करता that है। cross outside the city of Jerusalem 2000 years ago, उस क्रूस पर 2000 साल पहले यरूशलेम के बाहर उस गोलगोथा पर्वत पर he claimed, he declared, he demonstrated that he प्रिय loved. चीजों, उसने उसकी घोषणा करी, सिर्फ घोषणा नहीं किया, उसको प्रदर्शित किया उस क्रूस पर। The question is, मगर सवाल आज ये है, will you stop running? क्या आप भागना बंद Will करेंगे? you rest in? क्या आप इस परिश्रम को बंद कर Will you- उसमें आराम पाने की कोशिश Will करेंगे? you love him? क्या आप उससे प्रेम करेंगे? It is not the compelling of the elders that should draw you to him. प्रिय चीजों, यहाँ पर हमारे प्राचीनों के दबाव में आकर आपको सभाओं को जुड़ने की आवश्यकता नहीं है। Your Christian life is not dependent on how the elders invite you and compel you and pursue you. प्रिय चीजों, आपका मसीह जीवन इस पर आधारित नहीं होना चाहिए कि कितने बार प्राचीनों ने मुझे कॉल किया, कितने बार प्राचीनों ने मेरे बारे में सोचा। उसके आधार पर अपने मसीह जीवन को जीना बंद करें। Because he lives. मगर क्योंकि वो जीवित है, Because he is called. क्योंकि वो उसने आपको बुलाया है, We love him. आप उससे प्रेम करते हैं। Will you stop running? ये चीजों, परिश्रम करना, बेचैन होना, भागना बंद करें। Will you stop rebelling? आप उसके खिलाफ बलवा करना बंद करें। Will you stop being indifferent? क्या आप उसके साथ आपको ऐसा जीवन जी रहे हैं जिससे कि आपको कोई फर्क नहीं पड़ रहा है परमेश्वर Will के you बारे में? warm your heart at this table where grace is available this morning for each of you? प्रिय चीजों, क्या आप अपने दिलों को उस अनुग्रह के अधीन लाकर आप उसको कोमल करना चाहते हैं, उसको मुलायम करना चाहते हैं, जब ये मेज आपको वापस दिखा रहा है कि परमेश्वर ने आपके लिए क्या किया है। For the songwriter says, and I let me end with this, where the whole realm of nature mine, that were an offering far too small, love so amazing, so divine, demands my soul, my life. ये चीजों, इस गीतकार कहता है कि जब उस अद्भुत क्रूस को निहारता हूँ, मैं देखता हूँ कि मेरे जीवन में अब कुछ ऐसा नहीं जो मैं उसको देख सकता हूँ। मगर इस महान प्रेम को देखकर मैं अपने जीवन को पूर्ण रीति से प्रभु यीशु मसीह के पैरों पर सौंपना चाहता हूँ। इससे अधिक, इससे बड़ा और कुछ नहीं है जो मैं दे सकता हूँ।